بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین مکرم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ہماری گفتگو کا موضوع سخن رہا ہے طہارت اور پاکیزگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا. اسی کے تسلسل میں ابتدا میں ہم نے عرض کیا تھا کہ طہارت کی بنیادی دو قسمیں طہارت صغریٰ طہارت کبریٰ، اور یہ دونوں طہارتیں پانی سے حاصل کی جاتی ہیں. وضو اور غسل ان دو عنوانات پر پچھلی مرتبہ مختصر طور پر کچھ آیات کریمہ احادیث شریفہ اور کچھ ضروری مسائل آپ کے گوشے گزار کیے گئے. آج ہم نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے تیمم. تیمم کے متعلق بھی پچھلے جمعہ میں مختصر طور پر چند جملوں میں دو باتیں بتائی گئی تھی. تیمم وضو اور غسل اور ہر طرح کی طہارت کا نائب ہے، خلیفہ. اسلام میں نائب اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل کی غیر موجودگی میں کام کرے اس کو نائب اور خلیفہ کہتے ہیں. وضو اگر کوئی نہ کر سکے یا وضو کے لیے پانی موجود نہ ہو، کوئی غسل نہ کر سکے اور غسل کے لیے پانی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم تیمم کریں. حاضرین، جس طرح وضو سے پاکی حاصل ہوتی ہے، غسل سے پاکی حاصل ہوتی ہے، تیمم سے بھی ویسی ہی پاکی حاصل ہوتی ہے اور کوئی فرق پاکی کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا، کوئی کثر باقی نہیں رہتا. تیمم کہتے کس کو ہے، اس کو سمجھے پہلے. تیمم کا لفظی معنی ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ارادہ کرنا. اس کا یہ لفظ تیمم کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس میں پاکی حاصل کرنے کے لیے ارادہ کرنا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر وضو کریں اور نیت بھی نہ کریں پاکی کی تو بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ سے بیان کرواتے ہیں، اس کے مطابق تیمم وضو ادا ہو جاتا ہے. اور غسل میں نیت نہ بھی کریں تو غسل ادا ہو جائے گا، لیکن بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا. تو شریعت اسلامی کی روح سے پاکی جس سے اسلام میں حاصل ہوتی ہے وہ صرف پانی کے سوا کوئی اور چیز پاک نہیں کر سکتی. تمہاری وضو اگر کیا جائے، غسل کیا جائے تو یہ پانی سے کیا جائے گا. لیکن دین اسلام کسی کو مجبور بھی نہیں کرتا، اور کوئی مجبور ہو جائے تو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم بھی نہیں دیتا. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایسی جگہ ہو کہ پانی نہ ملے یا ایسی حالت میں ہے کہ پانی استعمال کرے تو یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے یا صحت دیر سے حاصل ہونے کا اندیشہ ہو. جلدی صحت ہو سکتی تھی، پانی استعمال کرنے کی وجہ سے صحت جلدی نہ ملے، ایسا اگر اندیشہ ہے یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا پھر پانی کے استعمال کرنے پر انسان کے اعضاء تلف ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی فالج کے اٹک ہو جائے یا پھر ہاتھ پاؤں پڑ جائے، اس قسم کی کوئی کیفیت اگر ہونے کا اندیشہ بھی ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ
पानी इस्तेमाल न करें और तयम्मुम कर सकते हैं। हाज़रीन किराम, तयम्मुम का जिक्र कुरान मजीद में भी है, अहादीस शरीफा में भी। दीन इस्लाम में जितनी अहम इबादतें, हाँ वो तहारत के इबादतें हो या फिर इबादतें जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इस किस्म की तकरीबन इबादतों का जिक्र हमें कुरान शरीफ में भी मिलता है, अहादीस शरीफा में भी मिलता है। और मुसलमानों का दारोमदार बुनियादी तौर पर इन दो किताबों पर है, अल्लाह का कलाम, कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलबत्ता इन दो कलामों को समझने के लिए सहाबाए किराम की जिंदगी, उनके अक़वाल की ज़रूरत और उसकी मदद भी पड़ती है, ये और बात है। लेकिन बुनियादी तौर पर असल बुनियाद मज़हब इस्लाम की ये दो किताबें। हाज़रीन किराम, मैंने आयत करीमा जो पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, अगर तुम नापाक हो जाओ तो खूब पाकी हासिल करो। अगर नापाक हो जाओ तो खूब पाकी हासिल करो। पाकी किससे हासिल करेंगे? यानी गुस्ल करो। इस आयत पाक में गुस्ल का हुक्म दिया जा रहा है और गुस्ल होता है पानी से। फिर उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू, अगर पानी ना पाओ, तुम्हें पानी ना मिल सके तो क्या करे? तयम्मुम करो। फ़तयम्ममू, ये तो कलाम मजीद का लफ्ज है, कलाम है, इसका सीधा सा तर्जुमा होता है इरादा करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम करने का हमें तरीका बताया। पहले हम तयम्मुम का आगाज कहाँ से हुआ, उसके मुताबिक अहादीस शरीफा क्या है, 2-3 अहादीस पाक समाप्त करेंगे। उसके बाद तयम्मुम कैसे करते हैं वो तरीका मुख्तसर तौर पर बताएं। हाज़रीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताअद्दिद अहादीस शरीफा में जिक्र मिलता है। सही बुखारी में है, मुस्लिम में है, सुनन नसाई में है और तिरमिज़ी, अबू दाऊद वगैरह में भी बहुत सारी तफसीलात मिलती हैं कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि ग़ज़वे से हम वापस हो रहे थे, लड़ाई से वापस हो रहे थे, दरमियान में एक मकाम पर आराम के लिए पड़ाव है। सहाबाए किराम के खैमे एक तरफ थे, उम्महातुल मोमिनीन के एक तरफ थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हार गुम हो चुका है। आपके पास जो सोने वगैरह का हार था वो गुम हो चुका था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में ही एक सहाबी को, जो पीछे सामान वगैरह अगर काफिले का छूटा है तो उसको उठाने के लिए, हिफाजत के लिए मुकर्रर होते थे, उनको तलब फरमाया, इरशाद फरमाया कि तलाश करो। हाज़रीन, रात का वक्त गुजर गया, वो हार तलाश किया जाता रहा मगर मिल नहीं पाया, हत्ता के नमाज फजर का वक्त आया, सुबह का वक्त करीब आया। जब नमाज फजर का वक्त आया तो सहाबाए किराम वुज़ू के लिए तैयारी कर रहे थे मगर पानी नहीं था। तो बाद सहाबाए किराम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के पास आए और ये कहने लगे कि आपकी शहजादी ने मुझसे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक रखा है। अगर हम रात के आखिरी हिस्से में यहाँ से निकल जाते, पानी की जगह पर पहुंच जाते तो नमाज अदा हो जाती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जलाल आया, गुस्से में आए और अपनी शहजादी के घर तशरीफ़ लाए, यानी जहाँ सरकार जलवा थे। दरवाजे पे दस्तक दी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इजाज़त दी, आप तशरीफ़ लाए। तो हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने हदीस पाक सुनन नसाई की है जो मैं तफसील बयान कर रहा हूँ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब दौलत खाने में डेरे में तशरीफ़ लाए तो देखा हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मांडी पर आपकी गोद में सरे अंदर रखे हुए आवाज़ फरमा रहे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खामोशी इख्तियार की, कोई आवाज़ नहीं की, क्योंकि आपको गुस्सा भी था कि मेरी बेटी की वजह से इतने सहाबाए किराम की नमाज का मसला हुआ है। एक फितरी तकाज़ा है, इंसान की फितरत का तकाज़ा ऐसा होना भी चाहिए और ऐसे हालात ऐसे ही नहीं बनते थे। अल्लाह ताला चाहता था कि ऐसे हालात बने और नया हुक्म आए। शरीयत में हुक्म आने के लिए कुछ हालात बना दिए जाते हैं, अल्लाह ताला के कहते हैं। बहरहाल ऐसा हुआ तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अपने गुस्से का इजहार अपनी बेटी पर इस तरह किया कि आपके हाथ में एक लकड़ी थी, उसको लेकर आपने अपनी बेटी को चुभोया, क्योंकि आवाज नहीं कर सकते थे, सरकार के आराम में खलल होगा, और आहिस्ता से इशारे से फरमाने लगे कि तुम्हारी वजह से सहाबा की नमाजों का मसला आया है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मुझे बहुत तकलीफ हुई, दर्द हुआ, लेकिन चूंकि मेरी गोद में सरकार आराम फरमाए इसलिए मैंने हरकत भी नहीं की, आवाज भी नहीं की,
کہ میرے آقا کے آرام میں خلل نہ ہو جائے۔ تو یہ ادب ہے صحابہ کرام کا اور امہات المؤمنین کا کہ پیارے آقا کے آرام میں خلل ہونا گوارا نہیں کرتے تھے، مگر ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتے تھے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھ مبارک کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو بکر صبر کرو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات سے واقف ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صبر کرو، اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ پانی کسی کے پاس نہیں تھا، اس نے دیکھ میں حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پانی کی ضرورت ہے اور وضو کرنا ہے، پاک ہونا ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ تو حضرت کرام اس آیت پاک کی روشنی میں آیت پاک اپنی جگہ ہے، احادیث پاک اس کی تفصیل ملتی ہے کہ اگر کوئی پانی نہ پائے تو پھر اسے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اب تیمم کریں کیسے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، یہ غالباً امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، راستے میں ہم نماز فجر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام کے پاس پانی دیکھا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ چونکہ ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا تیمم کا، پانی نہیں ہے، تو بعض صحابہ کرام ایسے ہی نماز پڑھ لی، ان کو تیمم کا حکم نہیں معلوم تھا، اور جو پہلی والی محفل میں جو حضرت عائشہ کی حدیث پیش آئی اس میں موجود تھے، ان کو معلوم تھا کہ تیمم کرنا ہے، لیکن تیمم کا طریقہ ان کو معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ زمین پر لوٹتے، اللہ کا حکم ہے کہ تیمم کرو مٹی سے، سعیداً طیباً، پاک مٹی سے تیمم کرو، یہ اللہ کا ارشاد ہے، تو وہ زمین پر لوٹتے چونکہ وہ ناپاک تھے اور انہیں پاکی کی ضرورت تھی، تو پورے بدن پر جیسے پانی بہایا جاتا ہے غسل میں، تیمم میں شاید ایسے ہی پورے بدن کو مٹی میں لپیٹا جائے، یہ سمجھ کر وہ صحابی رسول زمین پر لوٹنے لگے، نماز ادا کر کے پھر حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ حضور میں نے ایسا تیمم کیا، تو پیارے آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا تیمم بھی ہوا، تمہاری نماز بھی ہوئی، لیکن تیمم ایسا نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد حضور نے تیمم کا طریقہ سکھا۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ تیمم کے متعلق ابتدائی اسلام میں جو احکام نازل ہوئے تھے اس کی تفصیلات ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوں گے اس زمانے میں تیمم کی ایسی کیا ضرورت پیش آئے گی۔ حاضرین کرام، دین اسلام کے اصول کے مطابق ہمیں ایک بات اچھی طرح معلوم رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک معمولی سے سنت کے مطابق بھی اگر مسئلہ ہو، مستحب کے درجے کا بھی کوئی مسئلہ ہو، قرآن و حدیث اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ زندگی میں مان لیجیے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی حال ایسا پیش آئے تو شریعت اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی، ہر قدم پر ہمیں شریعت رہنمائی کرتی ہے، عمل ایسا کرو، مسا ایسا کرو، تیمم ایسا کرو، وضو ایسا کرو، ہر تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انما جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے آقا نے فرمایا تمام زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور پاک کر دی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں شارحین علماء اکرام یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو خاصیتیں نعمتیں عطا فرمائی، پچھلی والی کسی امت کو ویسی نعمتیں نہیں دی گئی۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں میں وضو تھا، پچھلی امتوں میں غسل بھی تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانے میں کسی امت کے لیے تیمم کا حکم نہیں تھا۔ نماز کا وقت ہو جائے، نماز ہر زمانے میں تھی، لیکن 5 وقت کی نماز ہر زمانے میں نہیں تھی، کسی کے لیے 2، کسی کے لیے 3، علیحدہ علیحدہ نمازیں، کسی کے لیے 1 نماز تھی، مگر 5 نمازیں اس امت کی خاصیت ہے، تو وضو غسل کے سوا تیمم بھی صرف اسی امت کو دیا گیا ہے۔ ہم سے پہلے والی کسی امت میں تیمم نہیں تھا، یعنی ان کے لیے لازم یہ تھا کہ پانی تلاش کرو اور وضو کرو یا غسل کرو پھر نماز کرو۔ اس امت کو اللہ نے اجازت عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاطر تمام روئے زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، تم جہاں چاہے پاک زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پاک زمین سے اگر پانی نہ ہو تو تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ حاضرین، اب تیمم کرے کیسے، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अद्दरबतु लिलवजहि वद्दरबतु लिलयदैनि, यानी एक जमीन पर दो हाथ मारेंगे, इसे ज़र्ब कहते हैं। तो एक ज़र्ब चेहरे पर मसा करने के लिए और एक ज़र्ब हाथों पर मसा करने के लिए। हदीस पाक में इतना जुमला मिलता है। पूरा तरीका क्या है, इसके मुताबिक शारीरीन उलमाए किराम वगैरह अपनी किताबों में, फिक़्ही किताबों में तहरीर ये फरमाते हैं कि तयम्मुम का तरीका ये है कि सबसे पहले पाक ज़मीन देखें, अगर ज़मीन हो तो ज़मीन, या फिर ज़मीन से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे ज़मीन पर फर्श बिछा हुआ होता है, पत्थर होता है, या सीमेंट की प्लास्टिक होती है, या दरो दीवार है, दीवारों पर पत्थर है, या चूना है, या गच्ची है, इस किस्म की अगर चीज़ें हैं तो फिर उनसे तयम्मुम कर सकते हैं। तो तयम्मुम करने के लिए सबसे पहले दो हाथ ज़मीन पर इस तरह मारें और उसके बाद हाथ को झटके। हाथ इसलिए झटकना है कि कोई कंकर वगैरह अगर लगे हों तो चेहरे पर न लग जाए। देखिए कितना लिहाज रखता है हमारी तबीयत का इस्लाम। चेहरे पर मिट्टी मलने का मसला है तो भी हाथ झटकने का हुक्म दिया, और उसके बाद ये एक ज़र्ब हुआ, चेहरे पर मल लें, दो हाथ इस तरह मसा कर ले, बस जैसे वुज़ू में हम पानी बहाते हैं। लेकिन इस मसा में इतना लिहाज रखना ज़रूरी है कि आँखों का ये किनारा और आँखों का ये किनारा, और फिर नाक के पास वाला ये हिस्सा आमतौर पर इस तरफ मसा नहीं होता। मूंछ अगर होठों पर आए हुए हैं तो उन्हें हटाकर उस पर भी मसा किया जाए। इस तरह के ये कान के बाजू वाले जो दो हिस्से खुश्क होते हैं, यहाँ से खूदी के नीचे तक पूरे चेहरे पर मसा कर लिया जाए। अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी पर मसा कर लिया जाए। ये एक ज़र्ब हुआ। फिर दूसरा ज़र्ब मारे, उसके बाद दो हाथों को ऐसा आलजा कर दे, तीन तीन उंगलियां मिलाएं। ये तयम्मुम करने का तरीका है। पहले सीधे हाथ का मसा करना है तो बाएं हाथ इस्तेमाल करना होगा। तो बाएं हाथ की तीन उंगलियों को ऐसा ले लें, इसके नीचे से लेकर यहाँ तक लाएं, फिर हाथ इस तरह पलटाकर यहाँ तक कर दें। ये तरीका हुआ। फिर दूसरे हाथ को इस तरह करें, फिर उंगलियों का खिलाल कर लें। ये मुकम्मल तयम्मुम हुआ। तो हाज़िरीन किराम, बस तयम्मुम में ये दो ही रुकन है, चेहरे का मसा करना और हाथों का मसा करना। पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है, पाँव के मसा की ज़रूरत नहीं है, सर के मसा की ज़रूरत नहीं है। ये तयम्मुम है। अगर कोई पानी ना पाने की सूरत में या फिर बीमार है, पानी इस्तेमाल करेगा तो बीमार ज़्यादा हो जाएगा, या हाथ पाँव गिर जाने का अंदेशा है, बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, तो भी उसको तयम्मुम करने की इजाज़त है। अगर पानी ना हो तो ये सूरत है, पानी इस्तेमाल ना कर सकता हो तो ये सूरत है। ये दो सूरतें हैं। अब उसके अलावा फिर तयम्मुम किसी और सूरत में करने की इजाज़त नहीं है। थोड़ी सी सर्दी को डर के अगर कोई तयम्मुम करता है तो ये दुरुस्त नहीं है कि सर्दी हो रही है इस खातिर नहीं, बल्कि पानी गर्म कर लिया जाए, उसे इस्तेमाल किया जाए। हाँ, बीमार आदमी है, बड़ी उम्र वाली शख्सियतें हैं कि सर्दी का पानी इस्तेमाल करने की वजह से अगर उन्हें फालिज का अटैक हो जाए या बीमारी बढ़ जाए, ऐसी सूरत अगर है तो इजाज़त है। बहरहाल इस्लाम बहाने तराशने की इजाज़त नहीं देता, मजबूरी के वक्त में सहूलत भी अता फरमाता है। अब हाज़िरीन किराम, ये देखना है कि पानी कितनी दूर ना मिले तो करें। ये एक भी बड़ा मसला है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं मिला हम कर लिए, ये बात नहीं होती। मसला क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए कि हम आबादी में हैं या फिर सफर में, तो आबादी में हो या सफर में हो, अगर हमें पानी न मिले तो सबसे पहले पानी तलाश करना है 1 मील दूर तक। 1 मील किसको कहते हैं? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर का शरई 1 मील होता है। तो 1.5 किलोमीटर तक पानी तलाश करें, और किस तरफ? 4 जाने, सामने 1.5 किलोमीटर तक, पीछे 1.5 किलोमीटर तक, दाएं 1.5 किलोमीटर तक, बाएं 1.5 किलोमीटर तक। इतना तलाश करने के बाद भी अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम की इजाज़त। पानी नहीं है हम तयम्मुम कर लेंगे, ये मसला नहीं होता, उसके लिए तलाश करना भी ज़रूरी है। ये एक बात हो गई। हाज़िरीन किराम, अगर कोई तयम्मुम कर लिया, तलाश भी कर लिया, फिर तयम्मुम भी कर ली, नमाज भी अदा कर दी, नमाज के बाद अगर मालूम हो कि पानी मिला फलां जगह पर, तो अब चूंकि हमने तयम्मुम कर लिया, तलाश भी कर लिया, नमाज भी अदा कर ली, तो अब नमाज हमारी हो गई। पानी अगर मिल जाए या किसी के पास है जिसे हम मांग कर भी ले सकते हैं तो ले लें, खरीद कर भी ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन खरीदने की कीमत पानी की हो, उससे बढ़ के ना हो। मिसाल के तौर पर 20 रुपये का बॉटल
अगर कोई 40 में बेच रहा है तो शरीयत कहती है कि मत खरीदो, तयम्मुम कर लो। कीमत से बढ़ के अगर पानी बेचा जा रहा है तो खरीदने की भी, ना खरीदने की भी इजाजत है। ऐसे ही अगर पानी है हमारे पास, पानी मौजूद है, तयम्मुम भी वुजू भी कर सकते हैं, लेकिन ये पानी अगर हम वुजू करेंगे या गुस्ल करेंगे तो सफर में प्यासे रह जाएंगे, तो अब ये पानी होते हुए भी तयम्मुम करने की इजाजत है, क्योंकि ये जरूरत का पानी, जरूरत से बढ़ के पानी की ये इजाजत है। यहां तक उलमा इकराम ने तहरीर फरमाया है कि अगर किसी के पास पानी है, आटा अगर गूंदेगा, पानी अगर इस्तेमाल करेगा वुजू के लिए, पानी न होने की सूरत में उतना पानी है कि अगर वुजू के लिए पानी इस्तेमाल करेगा तो आटा गूंद नहीं सकेगा, तो वो पानी इस्तेमाल मत करें, आटा गूंदे, इसके बजाय वुजू के बजाय तयम्मुम करें। इतनी रियायत शरीयत मुतहरा अता फरमाती है। तो बहरहाल ये तयम्मुम के मसाइल हैं। अब इस दौर में आमतौर पर ऐसे मसाइल तो लोगों को कम पेश आते हैं, क्योंकि जंगलों में, पहाड़ों में जाना आना ज्यादा लोगों का होता नहीं है। अगर जाते भी हैं सैर तफरीह के लिए तो माशाअल्लाह पानी के बड़े बड़े बॉटल भी लेके लोग चले जाते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं। लेकिन इस दौर में भी तयम्मुम की जरूरत पड़ सकती है, ना पड़े तब भी हमारे दीन का मसाला है, इसको मालूम करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में कब कोई बात हमारे पेश आए इसका हमें अंदाजा नहीं है। हाज़िरीन, आज से तकरीबन 1350 साल पहले हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल किया गया। सवाल ये किया गया था कि हजरत, अगर किसी को पानी न मिले तो क्या करे? तो आपने फरमाया, कुरान कहता है, हदीस कहती है, तयम्मुम करे। तो लोगों ने पूछा कि हजरत, तयम्मुम के लिए अगर मिट्टी या मिट्टी के जिन्स की कोई चीज ना मिले, मिसाल के तौर पर अब हम दरो दीवार में हैं, माशाअल्लाह कोई मसला नहीं है कि तयम्मुम हम जमीन से भी कर सकते हैं, दरो दीवार से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरक्की याफ्ता दौर है, उस जमाने में वैसी कोई सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि आदमी हवाओं में फजाओं में तो उड़ता नहीं था। 1300 साढ़े 1300 साल पहले जमीन पर रहता था, पहाड़ों में रहता था, जंगलों में रहता था, हर जगह मिट्टी और हर जगह पानी। लेकिन उस वक्त सवाल किया गया, किसी को मिट्टी या मिट्टी के जिन्स की कोई चीज ना मिले। मिट्टी का जिन्स का मतलब क्या होता है? मिट्टी से निकलने वाली वो चीजें जिस पर आग का असर न हो, जैसे सीमेंट, चूना, पत्थर, गारा, गच्ची, ये चीजें, पेट्रोल और प्लास्टिक और न जाने क्या क्या चीजें, जमीन से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, मगर उस पर आग का असर होता है। लोहा, सोना, चांदी, इसको आग पिघला देती है, उससे तयम्मुम नहीं किया जा सकता। जिस पर आग का असर न हो उससे तयम्मुम हो सकता है। तो उस वक्त सवाल किया गया कि ये भी ना हो वो भी ना हो तो क्या करें? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो आदमी पाकीदुल तहूरैन है, यानी दो पाक करने वाली चीजें, पानी और मिट्टी, अगर दो भी किसी को ना मिले तो वो जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज अदा कर ले। फिर जब भी उसे पानी या मिट्टी मिल जाए तब वो तयम्मुम करे। पानी मिले तो वुजू कर ले, मिट्टी मिले तो तयम्मुम कर ले। फिर जो नमाज पहले पढ़ा था वो नमाज का इयादा कर ले। वो नमाज कज़ा नहीं हुई, वो नमाज भी अदा हुई, लेकिन चूंकि पूरी तहारत से अदा नहीं हुई थी, इस वजह से दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया है। हाज़िरीन, अब इस जमाने में वो मसला हमें पेश आता है। मिसाल के तौर पर हम प्लेन का सफर करते हैं, और ऐसा हुआ है, होता भी है कि प्लेन में कभी पानी नहीं रहता, और वहां आपको तयम्मुम करने की कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको प्लास्टिक मिलेगी, रेक्सिन मिलेगा, बाकी दूसरी चीजें मिलेगी। गर्दो गुबार का तो नामो निशान नहीं है वहां पर। तो पानी भी नहीं है, मिट्टी के जिन्स की चीज भी नहीं है, फाकिरुल तहूरैन, दो पाक करने वाली चीजें उसे नहीं मिल पाई। तो 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो मसला बयान फरमाया था, आज भी हम उस मसले पर अमल कर सकते हैं। वो मसला आज हमारे काम आता है। तो हाज़िरीन इकराम, हमारे दीन में इतनी वसाअत है, इतनी कुशादगी है। सारी बात का खुलासा ये कि तहारत के मसाइल में से चंद बातें आपसे गोशे गुजार की, लेकिन इन सब बातों से हमें एक सबक ये मिलता है कि इंतहाई मजबूरी की सूरत में ही हमसे इबादतें माफ हो सकती हैं, वरना हम हड्डे कट्टे हैं, मोटे ताजे हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं और ये समझते हैं कि वुजू नहीं कर सकता या फिर मैं नमाज नहीं कर सकता। ये सूरत हाल हो ही नहीं सकती हमारी जिंदगी में। इंतहा दर्जे की आखिरी सूरत में भी तयम्मुम की इजाजत है, नमाज पढ़ने की बहरहाल जरूरत है। हाज़िरीन किराम, ये तहारत के चंद मसाइल थे, इस पर हम अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं इंशाअल्लाह।